हाँ बस ये सिराई करके शुरू की। राधे जी, क्या मामला है आज का? मामला ये है कि आज सुबह हमारे वरिष्ठ एसोसिएशन के साथी हैं लखविंदर सिंह जी, इनको एक सूचना गुप्त रूप से मिली कि एफएमसी कंपनी का नकली कीटनाशक जिसका नाम फर्टेरा है, जो 4 किलो पैकिंग में आता है,
सेम संदिग्ध अवस्था में संदिग्ध माल जो नकली प्रतीत होता है एक ट्रांसपोर्ट पर उतरा है। तो हमने अपने स्तर पर इस बात की तहकीकात की और ये पाया कि ये 10 पेटी जिसका वज़न 240 किलो है, ये एक निजी ट्रांसपोर्ट पर बिल्कुल संदिग्ध अवस्था में पड़ा है, जिसके ना बिल्टी है, ना बिल है, ना हैंडलर का पता है, ना डिस्पैचर का पता है। तो हमने इस मामले में पहले तो ये तस्दीक की ये असली है या नकली है। प्रथम दृष्टया वो पूर्ण रूप से नकली है और हमने इसकी सूचना स्थानीय कृषि विभाग और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी दी और उन्होंने मौके पर आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सैंपलिंग वगैरह इसकी? हाँ, सैंपलिंग वगैरह चल रही है। और किस तरह की कार्रवाई अब होगी आगे? इसमें जो है एक तो जो एक्ट लगता है इसमें इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर आता है, तो उसमें एक तो डुप्लीकेसी का, कॉपीराइट का और 420 का, जो आज तक यही होता है और यही होता है। तो हमें जो एक सहयोग की अपेक्षा पेस्टिसाइड कंपनी जिसका भी ये डुप्लीकेट ब्रांड बना है उससे भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। हम सुबह 12 बजे से लेकर अब रात के 9 बज गए हैं और 9 घंटे से इस कार्य में जुटे हुए हैं। अब कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी जो हिसार से चल के आना था अब पहुँचे हैं और अभी भी पूर्ण रूप से सहयोग के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी असफलता यहाँ होती है। पिछले 2-3 सालों के अंदर हमने कम से कम 10 ऐसे केस पकड़े हैं और अमूमन सभी कंपनियों ने सहयोग किया है। ये एफएमसी बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका सहयोग ना मिलना हमें अपने आप में सोचने पर विवश करता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम किसान के लिए लड़ रहे हैं, हम बाज़ार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा अब ऊपर अधिकारियों से दबाव बनाकर और यूनियन का संगठित रूप इनको दिखाकर अब कहीं जाकर ये इस बात पर साइन करने को तैयार हुए हैं कि ये प्रथम दृष्टया नकली है। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपको भी पता लगा था सुबह मेरे ख्याल? ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ FIR ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2-2 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਕੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 10-10 20-20 ਪੇਟੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਕੜ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ। DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਧੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਗ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਧਮਕੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ CM ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਣਾ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, कि जेन्युइन सोर्स तो मान लो। माल मिला है 10 बैग के करीब आप बता रहे हो, तो लेकिन आया कहाँ से या जाना कहाँ था और कोई आदमी इसमें पकड़ा गया कोई शख्स? नहीं, ट्रांसपोर्टर से जो पूछताछ हमने अपने स्तर पर किया उसमें ये तय है कि ये नया बाज़ार दिल्ली से डिस्पैच हुआ है माल, लेकिन ये खाद की बिल्टी बनी है ना कि पेस्टिसाइड की बिल्टी बनी है। और ये एक गोरख धंधा इन्होंने जो चला रखा है और जिसमें जैसे लखविंदर जी ने बताया कि कुछ हमारे ही लड़के इसमें ऐड कर रखे हैं। और मैं ये भी सारे बाज़ार को भी ये कहना चाहता हूँ और किसान भाइयों को भी ये सूचना देना चाहता हूँ कि 3-4 लड़के जो पिछले परिदृश्य में 2-3 साल से घूम रहे हैं,
अगर हमारा कोई भाई उनको साथ बिठाता है, साथ चाय पिलाता है और उनके साथ रहता मिलता है तो वो भी हमारे रडार पर है। हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं ऐसे लोगों को, और अगर सहयोग कानून हमें देगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने स्तर पर किसान जत्थेबंदियों को तैयार करके और अपनी यूनियन के सहयोग से ऐसे लोगों को शरेआम मतलब बेइज्जत भी करेंगे और इन्हें इनके अंजाम तक भी पहुँचाएंगे। सर धन्यवाद। सर आज कुछ नकली कीटनाशक सिरसा में पकड़ा गया है, क्या मामला था, क्या कार्रवाई हुई है? हमें सूचना मिली कि सिरसा में जो जारिया ट्रांसपोर्ट कंपनी पे कुछ नकली पेस्टिसाइड है, तो हम मौके पर पहुँचे हैं। मौके पर हमने उसको चेक किया है और उसका सैंपल वगैरह ले लिए हैं और आगे जांच से तो उसके FIR करवा रहे हैं अभी मौके पे ही। फर्टेरा नाम से दवाई है, लगभग 240 किलो है, 4 किलो पैकिंग में। कितना ये मटेरियल था सर, आगे की क्या कार्रवाई? 240 किलो मटेरियल टोटल फर्टेरा, और उसकी हम FIR करवा रहे हैं और सैंपल ले लिया है और लैब में चला जाएगा टेस्टिंग के लिए। नकली और असली का वहाँ पता चलेगा। सर कैसे आया है, किसके पास जाना था, कोई बरामदगी किसी शख्स की? अभी तक ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले इसके बारे में हमारे को कोई सबूत अभी तक नहीं दिया, इसलिए हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ ही अभी FIR के लिए तैयारी करी है। आगे बाकी जांच के बाद आप? हाँ, आगे जांच के बाद वो अपने आगे किसको डिलीवरी करनी थी उसके बारे में अभी तक इन्होंने कुछ हमारे को कोई प्रूफ नहीं दिखाया। वो जैसे ही दिखाएंगे उसके आगे आगे पुलिस कार्रवाई जो होगी वो चलती रहेगी। लेकिन इसका शिकार कहीं ना कहीं तो किसान हो रहे हैं सर। हाँ, नुकसान तो आफ्टर ऑल सर फार्मर्स के है, लेकिन इस तरह से जैसे ही हमारे को सूचना मिलती है हम कार्रवाई कर देते हैं। ठीक है।